Good morning students, welcome to your English reader class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password, that is internal organs. What are internal organs? Internal organs are those organs that are inside our body. We can't see them, but they play an important role to make our body work. ये वे अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, हम इनको देख नहीं सकते बट वो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं. हिंदी में इनका अर्थ है आंतरिक अंग. So we are discussing internal organs as well as external organs in our EVS topic these days, as you know. So this is about our password. Now what we are going to do in our English reader class. So students, I want to tell you that from today we will start a new lesson in our English Communicate book, that is lesson number 2, and the name of the lesson is The Fly. This is on page number 16. So it is about a fly. वो एक fly के बारे में है. एक दिन क्या होता है, एक सुबह fly सोकर उठती है और वो अपना नाम भूल जाती है. So this is in story form. It is a very interesting story, students. So let's read the lesson. Yes students, this is our lesson number 2 on page number 16 in our English Communicate book or English Reader book. So students, have you taken out your English books? So open your books at page number 16. This is our lesson number 2 that we are going to start from today. The name of our lesson is The Fly. The Fly का अर्थ है मक्खी. So this is our get set page. What is get set page? Every time we start a new lesson in English, there is a page that is quite related to the lesson. So here you can see and you can easily understand कि हमारा जो lesson होगा वो animals के या insect के बारे में होगा. As the name suggests, the fly. Fly क्या होता है? Insect होता है, वो animal के group में ही आता है. So students, what are the things you can see in this picture? इस picture में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? There are trees, there are bushes, there is a pond, there are green fields, there is a grass, there are some water animals as well as land animals. So how interesting this page looks. कितना interesting लग रहा है ये page. So what is written here? I am going to read it. Name the animals. Write L for animals that live on land and W for animals that live in water. इन animals के name दो. L लिखो उन animals के लिए जो land पर रहते हैं और W लिखो उन animals के लिए जो water में रहते हैं. So here you can see. Read the names of the animals given below. Where do they live? Write land or water on the blanks. यहाँ पर लिखा गया है. इन एनिमल्स के नेम को रीड करो. ये वही एनिमल्स हैं. ये कहाँ रहते हैं? अगर लैंड पर रहते हैं तो हमें एल लिखना है या हम कंप्लीट वर्ड भी लिख सकते हैं लैंड. और अगर वाटर में रहते हैं तो हमें डब्ल्यू लिखना है या हम वाटर भी लिख सकते हैं. सो इज इट इजी टू डू? ये आपको करना है स्टूडेंट्स. You will write classwork here, today's date here, and then do it. I am going to discuss it with you, and then you can note it down. आप ये बाद में कर सकते हैं. So first is lion. Lion is a land animal. Next is whale. Whale is a water animal. The third one is octopus. Octopus is a water animal. Fourth is sparrow. Sparrow is a लैंड एनिमल. वैसे तो ये एयर में रहती है, ट्री पर इसका घर होता है. नेक्स्ट इज आउल. आउल इज अ बर्ड दैट इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल. स्टारफिश. स्टारफिश इज वाटर एनिमल. सो यू कैन सी मंकी हेयर, यू कैन सी काउ हेयर, यू कैन सी स्क्विरल हेयर. देयर आर फिश ऑल्सो. अ डक इज ऑल्सो देयर. So some lotus flowers are also there in the pond. ये आप देख सकते हैं. So we have learned that
इनमें से कौन से एनिमल्स वाटर में रहते हैं और कौन से लैंड में। सो मंकी कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है। स्क्विरल इज अ लैंड एनिमल, काउ इज अ लैंड एनिमल, फिश आर वाटर एनिमल्स, डक इज अ वाटर एनिमल, दिस इज lion you can say, or tiger, this is land animal. So this is our get set page. You have to write here L or W, कहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं उसी तरह से आपको लिखना है. So this is your class work. Now we are going to read our next page. So this is our next page, that is page number 17. Students, by now you know that this lesson is about the fly. ये एक फ्लाई के बारे में है. फ्लाई एक इंसेक्ट है. अब let us see कि फ्लाई के बारे में क्या कहा गया है. It is like a story. ये स्टोरी की तरह है लेसन. So once there was a tiny animal. एक बार एक छोटा सा एनिमल था. I told you earlier कि जो इंसेक्ट हैं या बर्ड है वो एनिमल ग्रुप में आते हैं. एक बार की बात है, एक छोटा सा एनिमल था. इट हैड बिग आईज एंड शाइनी विंग्स. उसकी आंखें क्या थी, बड़ी बड़ी, और पंख कैसे थे, शाइनी, चमक रहे थे. दिस टाइनी एनिमल गॉट अप वन मॉर्निंग. ये छोटा सा एनिमल एक दिन सुबह उठा सोकर, जैसे आप सोकर उठते हैं. It rubbed its eyes. उसने अपनी आंखें मली. It spread its wings. उसने अपने पंख फैलाए. And looked around. और आसपास देखा. Here you can see. ये एनिमल कहाँ है, ये एक ट्री की ब्रांच पर है. You can see a sparrow here. Sparrow सुबह सुबह अपनी चर्पिंग साउंड्स के साथ रेडी रहती हैं. अब ये टाइनी एनिमल है. इट इज़ गोइंग टू से, ये क्या कह रहा है, आई, आगे, नो, ओ डियर, हु एम आई, व्हाट इज़ माई नेम. अब ये किसको पूछ रहा है, अपने आप से पूछ रहा है. ओ अरे अरे क्या हुआ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो भूल गया कि मैं कौन हूँ. व्हाट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है. अब ये सारी स्टोरी किस बारे में है कि एक जो टाइनी एनिमल है ये भूल गया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है. सो दैट्स ऑल द स्टोरी अबाउट. सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. द टाइनी एनिमल फेल्ट सैड. अब वो छोटा सा एनिमल उदास हो गया. इट लुक्ड अप. उसने ऊपर देखा. इट सॉ द स्काई. उसने आकाश की तरफ देखा. देन इट लुक डाउन. फिर उसने नीचे देखा. वो कहाँ था, पेड़ की टहनी पर, ट्री की ब्रांच पर था. इट सॉ अ काफ. उसने एक काफ देखा. काफ क्या होता है, काऊ का, बफेलो का बेबी होता है. हियर यू कैन सी, ये काऊ का बेबी है, काफ. इट फ्लू डाउन टू द काफ. वो उड़कर काफ की तरफ चला गया. कौन, टाइनी एनिमल, जिसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है. डियर काफ, डू यू नो माई नेम. अब उसको काफ का तो नाम पता है, ये काफ है, बट अपना नहीं पता. डियर काफ, क्या तुम मेरा नाम जानते हो. अब ये देखो काफ, व्हाट इज द काफ डूइंग, वो अपना घास खा रहा है, ग्रास खा रहा है. नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता. आस्क माई मदर, मेरी मम्मी से पूछो. शी विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा नाम क्या है. अब ये भी काऊ का बेबी है, छोटा बेबी है, वो नहीं जानता. वो कह रहा है कि मेरी मदर से पूछो, मैं तो नहीं जानता. नाउ द टाइनी एनिमल फ्लू टू द काऊ. अब वो छोटा सा एनिमल काऊ की तरफ चला गया. काऊ कौन थी, वो काफ की मदर थी, उसकी तरफ चला गया. अब व्हाट इज इट गोइंग टू से, वो क्या कह रहा है काऊ से, ओ प्रीटी काऊ, डू यू नो माई नेम. अरे प्रीटी काऊ, क्या तुम मेरा नाम जानती हो. अब देखो इसको काऊ का भी पता है, ये काऊ है, काफ का भी पता है, बट अपने बारे में नहीं पता. ओ हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम. अब काऊ नाराज होती है कि अपना नाम भी भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है. इतने
कितने भुलक्कड़ हो। वाई डोंट यू आस्क द वुमेन विद द वॉकिंग स्टिक। मुझे नहीं पता, वो भैया बताना नहीं चाहती। वो कह रही है कि तुम कितने भुलक्कड़ हो, तुम मुझसे मत पूछो, किसी और को पूछो, वो उस वुमेन को पूछो, उस महिला को पूछो, उस लेडी को पूछो, उस औरत को पूछो जो कि वॉकिंग स्टिक लेकर जा रही है। जो कुछ लोग वॉक करते हैं तो हाथ में स्टिक रखते हैं, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। वो शायद हो सकता है मे बी वो ओल्ड हो वुमेन, तो इसलिए उनके पास एक वॉकिंग स्टिक है। तो काऊ बोलती है, काऊ अपनी तरफ से उसको बताती है कि मुझे नहीं पता, तुम नाम ही भूल गए अपना, जाओ उस विमेन से पूछो जिसके हाथ में वॉकिंग स्टिक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम आज इतनी ही स्टोरी पढ़ेंगे। वट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एज टुडे इज़ द डे फॉर EVS सब्जेक्ट्स होमवर्क। आज EVS का होमवर्क देना है, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क for EVS subject. Instead, I am giving you a English homework. As you know that we have done or learned book work of chapter number 1 in EVS. Now I have thought कि हम English का भी एक chapter और या poem करें. So I have thought about our poem The House. I want to tell you कि हम उसकी एक revision करेंगे, revision of make sentences. सो वो आपका टेस्ट लिया जाएगा ऑन मंडे। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज मेक सेंटेंसेस ऑफ द पोएम द हाउस। सो टुडे आई विल नॉट गिव यू एनी EVS होमवर्क, इंस्टेड आई एम गोइंग टू गिव यू इंग्लिश होमवर्क that is make sentences of our poem A House. This remaining story we will discuss in our next English class. So that's all for this reading of our lesson number 2. Now I am going to revise the English poem Make Sentences. The name of the poem is A House. So let's move to that. Yes students, as I told you that today I am not giving you any EVS homework. Instead I am giving you the English homework. This is a learning homework. I will take test of this learning homework on Monday. ये एक learning homework होगा जिसका टेस्ट मैं मंडे को लूँगी. So what is this homework? ये homework क्या है? I am going to tell you. Students, we have already done a poem in our English reader. That is A House. A House पोएम हमने की है, बुक में भी की है एंड नोटबुक में भी हमने की है. इन नोटबुक वी हैव डन स्पेल ड्रिल, मैचिंग एक्सरसाइज एंड मेक सेंटेंसेस. सो आपका मेक सेंटेंसेस का टेस्ट होगा ऑन मंडे. ये 6 मेक सेंटेंसेस हैं. यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस इफ यू विश. आप अपने भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बट दैट शुड मेक अ सेंस, बट वो मीनिंगफुल होने चाहिए. सो इनका टेस्ट मंडे को लिया जाएगा स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस वर्क. मैं आपको ये रिवीजन करा रही हूँ सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू. द फर्स्ट इज नेस्ट. फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है सेंटेंस के लिए नेस्ट. नेस्ट है, आपको पता है घोंसला है चिड़िया का या किसी बर्ड का. सो द सेंटेंस दैट आई हैव फ्रेम्ड इज अ बर्ड मेक्स द नेस्ट. एक पक्षी घोंसले को बनाता है. नेस्ट. द सेंटेंस इज अ बर्ड मेक्स द नेस्ट. आई विल गिव यू दिस वर्ड, ऐसा वर्ड दूंगी मैं एंड यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस. सो सेकेंड वन इज स्पैरो. स्पैरो मतलब चिड़िया. द सेंटेंस इज अ स्पैरो इज फ्लाइंग इन द स्काई. एक पक्षी या चिड़िया आकाश में उड़ रही है. So you can also frame sentence like this. This is a sparrow. Sparrow is flying. So इस तरह से आप भी बना सकते हैं sentence by your own, but you have to make it sure कि वो आपका sentence है वो correct. The next is hive. Hive क्या होता है? वो घर होता है किसका? bee का. A hive is a house for a bee. bee के लिए hive उसका घर है.
बी आपने देखा था, हम वी आर टॉकिंग अबाउट मधुमक्खी, बी हनी बी की बात कर रहे हैं, जिसका हमने पोएम में रीड किया था, बी हाइव बना रही थी वो। नेक्स्ट इज बनी। बनी क्या है? अ बनी इज अ स्मॉल रैबिट। बनी एक छोटा रैबिट होता है, उसको अफेक्शनेटली बनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज चिक्स। चिक्स क्या होते हैं? जो बर्ड के बेबी होते हैं उनको चिक्स बोलते हैं। देयर आर 2 चिक्स इन द नेस्ट। नेस्ट के अंदर 2 चिक्स हैं। नेक्स्ट इज हाउस। हाउस मतलब घर। माई हाउस इज नियर द पार्क। मेरा घर पार्क के पास है। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। माई हाउस इज नियर द टेम्पल, दिस इज माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज लार्ज। सो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई विल गिव यू दीज वर्ड्स। इनमें से कुछ वर्ड्स दूंगी मैं, नॉट ऑल, सारे नहीं दूंगी, कुछ वर्ड्स दूंगी, एंड देन यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस। और यू विल बी गिवन अ टाइम ड्यूरेशन। आपको एक टाइम का ड्यूरेशन मिलेगा, एंड दिस टेस्ट यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश रीडर कॉपी। उस पर हेडिंग लिखकर आपको ये टेस्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट विल बी टेकन ऑन मंडे। मंडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट टेस्ट। आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अटेम्प्ट द टेस्ट वेल। So that's all for our English class today, students. We will meet in our next English class. Till then, bye bye.